future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. So guys, as there is only 1 month left for your UCET examination, we have come up with 1 month UCET preparation strategy. So guys, today I'll be telling you what sort of strategy you have to follow as only 1 month is left for the examination. Also, I'll be revealing a surprise for you at the very end of the session. So be with us till the very end of this session. Let's start by understanding what should be the pre-exam approach. Okay, so basically here I have categorized what should be your first step and what should be the first approach for starting with the detailed strategy. The first thing is familiarize yourself with exam pattern. So guys, सबसे पहला टास्क जो हमें करना है स्ट्रैटेजी बनाने से पहले वो ये है कि हम अच्छे से एग्जाम पैटर्न को समझ लें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, राइट, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से वो डिवाइडेड होते हैं. ओके, सो फॉर दैट रिव्यू द सिलेबस. The one thing that I always tells to my student is to go through the official website of the particular examination and then look for the syllabus, review the syllabus there instead of just looking here and there and going to the random site and taking out these topics from there. आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से टॉपिक्स निकाल सकते हैं सिलेबस के लिए. वहां पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा. सो हेयर यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूसीट एंड यू कैन गेट द सिलेबस. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पार्ट ए. सेक्शन ए में क्या आता है. ओके, सो ये पैटर्न जो है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है. वहां से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है टू गिव यू अ बेटर व्यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. नाउ type of question, number of question, marks for correct answer, marks for wrong answer, marks for question not attempted, and total marks for the section. All these things I'll be explaining it to you. So firstly, let's look at the section in which type of question. The first type is numerical answer type question, which is known as NAT. Okay, the number of question that comes under NAT are 14. Marks for correct answer are 4. Marks for wrong answer 0, and marks for question not attempted is 0. Okay, total marks for the section is 56. देन टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं MSQ. इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आते हैं. इसमें पार्शियल मार्किंग होती है MSQ में. ओके, और रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स एंड मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड 0 एंड देन टोटल मार्क्स फॉर द सेक्शन इज 60. देन कम्स MCQ जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 आते हैं. जो करेक्ट आंसर आपको मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर जो होते हैं वो 3 होते हैं. ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा. मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर -0.71 एंड देन मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड 0, देन टोटल इज 84. ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल हो गए 57 और यहाँ पर टोटल मार्क्स फॉर द सेक्शन हो गए 200. ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट ए का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन. Now let's see the topics. पूरा सिलेबस देखते हैं. पार्ट ए का पहला है विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेशल रीजनिंग जिसमें विजुअलाइजेशन ऑफ 3D शेप, हिडन फिगर एंड ब्लॉक, काउंटिंग, रोटेटेड ब्लॉक्स, मैचिंग पीसेस एंड पार्ट्स, स्पेशल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, surface counting, gear and pulley problem, tools knowledge, basic physics concept, force, center of mass, gravity, couple of force and inertia are the topics. Okay, ये है प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज के अंदर टॉपिक्स और ये हो गया विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग के अंदर टॉपिक्स. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी. इसमें फॉन्ट एनालिसिस, स्पॉट द डिफरेंस, पजल, डिजिटल नंबर एंड 8 पीसेस पजल, ट्रेसिंग फिगर, ट्रेसिंग विदाउट लिफ्टिंग पेन. Okay, then comes environment and society, general awareness of environmental, social and cultural connection with design. Okay, then area and volume. इसमें geometry, triangle and circle, 2D figures, area and 3D figures, polygons. Now creativity part में graphs of verbal and non-verbal analogies, metaphors, signs and symbols. Okay, so these are the topics under aptitude section. Then analytical and logical reasoning जिसमें series, analytical reasoning, figure counting, paper folding and paper cutting, image analysis, analogy, mirror images and water images, pattern completion, figure matrix, cubes and dices, classification, construction of square and triangle.
एंड वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, पजल टेस्ट एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस. Now, visual and spatial reasoning, analytical and logical reasoning, area and volume और language. ये पार्ट में देखते हैं. Visualization of 3D shapes, hidden figure and block counting, rotated blocks, matching pieces and parts. Analytical and logical reasoning में series analytical reasoning, figure counting, paper folding and paper cutting. Okay. Area and volume में geometry जिसमें triangle, और language में reading comprehension जिसमें 2 पैसेज पर वीक वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन एंड 40 वोकैब पर वीक. ठीक है, ये इस तरीके से हम कवर कर सकते हैं. ओके, लैंग्वेज पार्ट. नेक्स्ट लैंग्वेज वाला पार्ट देखते हैं, उसमें क्या क्या कवर हो सकता है. प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंडिंग स्टैंडर्ड इंग्लिश जिसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड एनालॉगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड स्पेलिंग्स. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग एंड पैरा जंबल्स. Okay, so these were the topic that we have seen for the aptitude. Now, how to make the strategy? So these are the steps. Firstly, familiarize yourself with exam pattern and analyze the past year paper. Okay, past year paper इसलिए guys क्योंकि अगर हम past year paper को analyze करेंगे, then only we'll come to know कि what sort of question has been come in the examination. कि इस question का क्या weightage था, कौन सा टॉपिक जो है कितनी बार पूछा गया है. राइट, अगर आप पास्ट ईयर के पेपर को इवेल्युएट करेंगे तो आपको एक जिस्ट मिल जाएगा. ओके, एंड यू कैन डू वन थिंग, just analyze the previous year paper question, okay, and see what type of question have come, what sort of question have come, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, उन टॉपिक्स को एक जगह लिख लीजिए. वेटेज जिसका ज्यादा था, हायर वेटेज टू लोअर वेटेज, ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, ताकि आप वो टॉपिक तो जरूर कवर करें जो ज्यादा वेटेज के. नेक्स्ट, एप्टीट्यूड सिलेबस फॉर यूसीट एग्जामिनेशन. ओके, जिसमें विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज और रिवीजन साथ साथ हम कवर करेंगे. ये पूरा आपका एप्टीट्यूड सिलेबस जो टॉपिक्स है, ये 1 मंथ में कैसे कवर करेंगे, ये पूरा 1 मंथ की प्लानिंग है. ओके, नाउ इसमें है 3D फिगर्स, पॉलीगॉन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन. फिर गियर एंड पुली प्रॉब्लम जिसमें टूल नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट, फिजिक्स कंसेप्ट, फोर्स, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी, इनर्शिया, font analysis, spot the different, puzzle, tracing without lifting pen, 3D figures, polygon, surface area जिसमें वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड सरफेस काउंटिंग. ये हो गया आपका विजुअलाइजेशन और स्पेशल रीजनिंग में. एंड प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज. ओके, अब इसमें ये दोनों तो कवर करना ही है, साथ में रिवीजन भी करते रहना है. जैसे अगर मैंने ये 4 टॉपिक कवर कर लिए, ओके, पहले 4, तो उसके बाद ही मैं फॉरन रिवीजन लूंगी. आई विल टेक अ मॉक टेस्ट और मैं टेस्ट लूंगी और देखूंगी कि मुझे कितना आ रहा है. राइट, देन कम्स एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग. इसमें भी आप टॉपिक भी कवर करेंगे, साथ में आप रिवीजन भी लेंगे. ओके, टेस्ट लेंगे. तो इसमें है इमेज एनालिसिस, एनालॉगी मिरर, इमेज एंड वाटर इमेजेस, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर मैट्रिक्स, क्यूब एंड डाइसेस, क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट. दीज आर द टॉपिक्स. लैंग्वेज का भी सेम यही है सिनेरियो. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जिसमें 4 पैसेज पर वीक हम कवर करेंगे और वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन को 40 वोकैब पर वीक. ओके, ये हो गया लैंग्वेज का रिवीजन, और साथ में हम रिवीजन टेस्ट भी लेते रहेंगे. देन कम्स एरिया एंड वॉल्यूम. इसमें ज्योमेट्री में सर्कल्स, 2D फिगर में एरिया, पेरीमीटर रिलेटेड क्वेश्चन, और 3D फिगर में पॉलीगॉन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है, similarly goes hand in hand, we are covering the topic as well and taking the revision at the test at the same time. Then environment and society, और फिर उसका साथ में रिवीजन. जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल कनेक्शन विद डिजाइन. ठीक है, इस टॉपिक को कवर करना है. क्रिएटिविटी और रिवीजन, क्रिएटिविटी वाले पार्ट में देखते हैं ग्राफ्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉगीज, मेटाफर, साइंस एंड सिंबल्स. ये टॉपिक्स आते हैं जिसमें सिमिलरली हमारा रिवीजन चलता रहेगा. एप्टीट्यूड में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, 2D फिगर्स, एरिया, पेरीमीटर रिलेटेड क्वेश्चन, एंड रिवीजन गोज हैंड इन हैंड. So these are the topic that needs to be covered. Okay. Now, last week before exam. Okay. So here are pointers that we should keep in mind last week before exam. ठीक है. तो guys जब भी last week बचा हो exam से पहले,
तो सबसे पहले आप एक काम करिए, जो भी आपने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, उन सब को अभी से एक फॉर्मूला बेस्ड बनाना नोट्स स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब लास्ट वीक बचाओ तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉल्विंग अगेन एंड अगेन, गोइंग बैक, टर्निंग द पेजेस, यू कैन जस्ट सी दैट सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला एंड यू विल गेट एन आइडिया, राइट। तो उस टाइम के लिए कुछ भी मत छोड़िए, ओके। रिवीजन भी अभी लेना स्टार्ट कर दीजिए, टॉपिक कवर करिए, also at the same also at the same time start taking the revision of the particular topic, okay, so you can stay organized and be relaxed, ठीक है। Also बी रेडी विद द प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, राइट। एडमिट कार्ड के में ही मेंशन होता है स्टेशनरी जो आपको ले जानी है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो वील बी मेकिंग सेपरेट वीडियो फॉर द स्टेशनरी दैट नीड्स टू बी कैरी फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, नाउ लेट्स सी द पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट बी वाला सेक्शन देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं दो, ठीक है, 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और 60 मिनट के, मतलब 30-30 मिनट मिलेगा आपको दो क्वेश्चन के लिए, राइट। अब 100 मार्क्स के होते हैं तो 50-50, पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन 30 मिनट मिलेगा करने के लिए, जिसमें टोटल होता है 60 मार्क्स। फर्स्ट में स्केचिंग आएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। सेकंड में डिजाइन एप्टीट्यूड आएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पार्ट भी डिवाइडेड होता है। नाउ लेट्स सी प्री एग्जाम अप्रोच। Familiarize yourself with exam pattern and review the syllabus, okay, for which I'll tell you to go and visit the official website of UC. Now सिलेबस देख लेते हैं ड्राइंग पार्ट का, जिसमें फाउंडेशन में शेप टू फॉर्म, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, शेडो फॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, एनाटॉमी में मेल फीमेल, एक्शन एंड पर्सपेक्टिव, फेशियल एक्सप्रेशन एंड सीन क्रिएशन, मेमोरी डिजाइन, कलर थ्योरी, एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल, डिजाइन एप्टीट्यूड एंड डिजाइन थिंकिंग आर द टॉपिक्स। Now let's see the what sort of topic we have to cover in 1 month and revision कैसे होगा, ठीक है। तो पहले तो understand basic shape to form, object drawing, shadow formation, जिसमें familiarize yourself with fundamental drawing concepts like line, shape, perspective, proportion, और सबसे important shading वाला part, shading and composition are very important for your UCD examination. Then practice sketching, dedicate time to daily sketching sessions, focus on simple objects, still life arrangement and basic shape to enhance your observational skill. सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में वो है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और फिर क्रिएटिविटी, ठीक है। किस तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। इस एग्जाम में, यूसीड के एग्जाम में, प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बहुत आते हैं, राइट, कि आपने अपने अराउंड प्रोडक्ट बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड क्या क्या प्रॉब्लम ऑब्जर्व किए जिनसे आप डेली इंटरैक्ट करते हैं, है ना, एंड हाउ यू हैव कम अप विद द स्टेटेड द प्रॉब्लम और ऑब्जर्व द प्रॉब्लम एंड हाउ यू आर stating it out, right? Then inspiration, planning and develop drawing skills and revision. इसमें learn perspective, जिसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट perspective drawing, anatomy में male female, action and perspective, scene creation, memory design, and the last thing is पार्टिसिपेट इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, राइट। जो भी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग के हमें नहीं करनी चाहिए, राइट, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद भी हमें पॉसिबल एरिया मिलते हैं, जो सारे एरिया उस प्रॉब्लम जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें कवर हो सकते हैं, ठीक है। विदाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग यू कैन स्टार्ट इट। Then practice sketching and then practice solving design and drawing related problem revision, okay, design principle, color theory, design problems, perspective drawing, composition और expressive drawing, इन सब टॉपिक्स का प्रैक्टिस करना यूसीड के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम रिवीजन गोज हैंड टू हैंड, राइट, जिसमें आपको डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में दो कैटेगरी में आप इसको बांट सकते हैं। पहला हो सकता है सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, राइट, एंड सेकेंड इज अ प्रोडक्ट बेस्ड प्रॉब्लम। Now, last week before exam, relaxation and confidence building, quick revision and stay organized. Okay, do not leave anything for the last week, right? Just for the last week, just relax your mind. Okay, just get the printout for the admit card. Look for the stationery that you have to carry there, है ना? And what you can do at the time when you are work preparing and taking the revision at the same time, you can just look it at उसका एक नोट बना दीजिए और एक एक लुक दे सकते हैं आप लास्ट टाइम के लिए, राइट। उसको क्रैमिंग करना बंद कर दीजिए लास्ट वीक के लिए, क्योंकि जितने आप फ्रेश माइंड से जाएंगे, रिलैक्स माइंड से जाएंगे, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। So this was all about the UC'd 1 month strategy, guys. And
I also, said in the beginning of the session that I'll be revealing a surprise for you all. That is, you will be getting a PDF of this 1 month strategy, USEED strategy. Click on the description box, and in the description box, you will get a PDF file, okay, for the 1 month USEED strategy that I have discussed right now. Subscribe our channel, and for more exciting videos, do follow our YouTube channel. Okay, thank you.